welcome back to Ali's Tarot Cafe. Every week we take out the Osho Zen cards for your particular zodiac sign. All you need to do is go to the description box, check out the timestamp for your zodiac sign and navigate to that portion of the video for which the tarot prediction is going on. So these tarot cards are supposed to give a lot of direction, clarity and healing to you. So I hope you enjoy the reading for yourself. And also don't forget to like and subscribe this video. Alright, so without any further delay, I'm gonna take out the cards for my Aries friends and see what's the tarot prediction for them. Alright Aries, so the first card that has come for you is the compromise card. That means आपने कुछ तो professional या personal space में compromises कर रखे हैं, okay? And maybe you made those compromises not with your heart. मतलब आपके पास उस टाइम पे कुछ टाइम, रिसोर्सेज या एफर्ट, एनर्जी की कमी थी जिसकी वजह से आपने कहा ठीक है यार जो अभी चल रहा है उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. बट नाउ द कार्ड्स आर वेरी क्लियरली टेलिंग यू दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट कीप कॉम्प्रोमाइजिंग. यू आर एबल टू टेक चार्ज ऑफ योर प्रायोरिटीज कि आपको क्या चाहिए लाइफ में. एंड आई एम श्योर that the people around you who really care for you and love for you, they will understand your priorities. All right. Second, आपका कार्ड आया है traveling card. मतलब कुछ opportunities हैं जो अभी थोड़े से cloudy है. They have not been able to materialize, but the card is saying soon they will be sunrise. और ये जो सारे clouds हैं doubt के या जो भी obstacles हैं आपके path में वो clear हो जाएंगे and you will be able to proceed to your goal ahead. All right. So that's a very positive card for you. And the third card Aries that has come for you is the Fool card. मतलब कि in the coming weeks आपको कुछ professional या personal space में opportunities आएंगी जो थोड़ी सी risky होंगी. And people may say that you are being a fool, you are being foolish by thinking about taking those opportunities because of the risk involved or because of the effort involved. But you have to remember that those opportunities are going to be good for you, and if you don't take them और आप वो opportunities को use नहीं करोगे, then you will be the real fool, Aries. Alright Aries, I hope you liked your tarot prediction for the coming week. I'm gonna take out the cards for my Taurus friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright Taurus. Alright Taurus, so you have got a celebration card. मतलब there's going to be some very good news in your immediate family. Maybe the birth of a child or a job or a new house or some kind of a recognition that your kids, some award or prizes that your kids may earn. मतलब there will be a moment where you will all really rejoice. आप बहुत खुश होगे उस event को लेके and you will really be happy and have a good time. So I can't wait to hear what that celebration was in your family. So do share in the comment section. Alright. Second आपका कार्ड आया है Fool कार्ड. मतलब कुछ opportunities हैं जो आने वाली हैं जो थोड़ी सी रिस्की होंगी और थोड़ा सा आपका टाइम और एफर्ट ज़्यादा लेंगी और लोग आपके आसपास ये भी कहे कि मत लो ये अपॉर्चुनिटी, बट वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होगी. सो टेक दैट रिस्क एंड गो हेड, एंड इफ यू डोंट डू दैट देन यू विल बी फुलिश. ऑलराइट. एंड थर्ड आपका कार्ड आया टॉरस कॉम्प्रोमाइज कार्ड. मतलब कि द कार्ड इज क्लियरली टेलिंग यू कि जो भी आपने कॉम्प्रोमाइजेस पास्ट में किए थे या तो प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में, अब टाइम आ गया है फॉर यू टू रिक्लेम व्हाट्स योर्स एंड टेक अपनी प्रायोरिटीज को आप इंपॉर्टेंस दे और वो कॉम्प्रोमाइज को छोड़ दे. एंड द पीपल अराउंड यू हु ट्रूली केयर फॉर यू एंड हु लव यू, दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ओके टू डू दोज कॉम्प्रोमाइजेस एनीमोर. Alright Taurus, so I wish you all the best for the next week. I'm gonna take out the cards for my Gemini friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright Gemini. ओके जेमिनी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बहुत सारे लोग आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाने के लिए रेडी है. सो यू हैव गॉट द पॉलिटिक्स कार्ड. मतलब सम पीपल आर रियली गोइंग टू प्ले वेरी डर्टी पॉलिटिक्स विद यू. तो आपको बहुत कॉशियसली चलना है प्रोफेशनल या पर्सनल स्पेस में. कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर योर वेल विशर्स एंड दे मीन गुड फॉर यू, बट दैट्स नॉट द केस. सो आपको किसी भी मनी रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले या अपने पूरे प्लान्स डिस्क्लोज करने से पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ वो डिस्क्लोज कर रहे हो. ठीक है. और आपका पास्ट लाइफ कार्ड्स भी आया. मतलब इन द पास्ट कुछ जो लोग हैं जिन्होंने बहुत आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग की है, they have really made your life hell, they are back again and they're gonna be make sure that आपको वो कुछ किसी तरह का नुकसान या हार्म या कोई लॉस पहुंचाए. सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट वीक. ऑलराइट. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका आया है जेमिनी
थंडरबोल्ट, जिसका मतलब कि देयर गोइंग टू बी सम इवेंट्स इन द कमिंग वीक्स जो आपको एक थंडरबोल्ट की तरह, एक बिजली की तरह आपको हिट करेगा, एंड आपको तब रियलाइज होगा कि हु आर योर रियल वेल विशर्स, और आप तब डिसाइड करोगे कि आप किस नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ वार्निंग फॉर यू जेमिनाई कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस कार्ड में चक्रास आए. मतलब अगर आप अपनी फूड, एक्सरसाइज या अपनी स्लीप को इग्नोर करेंगे तो शायद से आपको मेंटल या फिजिकल एलिमेंट्स हो सकती है. सो यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जेमिनाई नेक्स्ट वीक. आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट वीक. ऑल राइट कैंसर, तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस. मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपकी इनोसेंस की वजह से आपको हार्म ना पहुंचाए. दे मे बी सम पीपल हु मे टेक एडवांटेज ऑफ योर इनोसेंस, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब इमोशंस की बात आती है या फिर मनी की बात आती है तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ऑल राइट, सेकेंड आपका कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस. मतलब आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, दे हैव बीन बिल्ट ओवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ये ट्रीज की रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब यू हैव स्टक विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थ्रू थिन. सो यू हैव टू respect that relationship and appreciate your partner for that, so that it can blossom more and more. And third आपका कार्ड है aloneness. मतलब there will be some moments in next week or in the coming weeks जब आपको थोड़ा सा अकेलापन लगे कि आई एम अलोन इन दिस पर्टिकुलर बैटल्स, या मेरे साथ कोई है नहीं इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. तो इसमें गाइडेंस आपको ये दे रहे हैं कि जैसे मंक्स होते थे वो अलोन अपनी जर्नी में अलोन चलते थे एंड दे यूज्ड टू अचीव निर्वाणा या सेल्फ रियलाइजेशन. तो इस तरीके से आप ये जो अलोन टाइम है इसको पॉजिटिवली लीजिए एंड देखिए कि यू कैन यूज दैट फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग आउट योर प्रायोरिटीज. ऑल राइट कैंसर, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई लियो फ्रेंड्स एंड सी की नेक्स्ट वीक के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है. ऑल राइट लियो. All right. So Leo, first आपका कार्ड आया है चेंज कार्ड. मतलब there going to be certain changes around you in the coming week, either in your professional or in your personal space. और ये changes आपके लिए may not be very comfortable, obviously, because कोई भी change बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है and it kind of shakes you up from your normal routine. तो उसके वजह से the card is saying कि अगर आप उस चेंज में बह जाते हैं एंड यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड या फ्लस्टर्ड कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो इट्स गोना मेक थिंग्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू. बट आप जितना उस चेंज को एम्ब्रेस करेंगे और अपने माइंड को पीसफुल करोगे, काम डाउन करोगे कि दिस इज द नेम ऑफ लाइफ एंड आई नीड टू अडेप्ट, उतना ही आपके लिए वो चेंज ईजी रहेगा. ऑलराइट, टू गो थ्रू. सेकेंड आपका कार्ड आया एग्जिस्टेंस कार्ड. मतलब इन द कमिंग टाइम्स आपको ये बहुत अच्छी सी रियलाइजेशन होगी कि आई नीड टू एग्जिस्ट इन द मोमेंट टुडे एंड आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द वर्ल्डली प्लेजर्स और द वर्ल्डली परसेप्शंस के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आप नहीं सोचोगे और आप बहुत पीसफुली अपने एग्जिस्टेंस में रहेंगे. और ये जो लोटस लीव है मतलब आपको वो विजडम आ जाएगी कि हाँ, आई डोंट हैव इनहिबिशंस, मुझे फोबियाज नहीं रखते हैं और मुझे मेरी लाइफ के हायर पर्पस को मीट करता है उसको स्टिक करना है मैंने. एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट अदर्स मे थिंक ऑफ मी और जज अबाउट मी. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस इन द कमिंग वीक्स. और एक शूटिंग स्टार है, मतलब सम लक यू गोइंग टू गेट, some good news from somewhere, some lucky gift or prize or some money, but it's gonna bring you that you'll feel very happy कि हाँ ये बड़ी lucky चीज़ मेरे साथ हुई है. ऑलराइट, एंड थर्ड आपका कार्ड आया है लॉर्ड बुद्धा का कॉन्शियसनेस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड कि लॉर्ड इज सेइंग यू ओनली बिलीव इन योर ट्रू कॉन्शियसनेस. आई एम देयर टू गाइड योर कॉन्शियसनेस, सो डोंट वरी अबाउट वर्ल्डली थिंग्स एंड डोंट हैव एनी फोबियाज और फियर्स बिकॉज आई एम गोना बी विद यू एंड आई एम गोना टेक योर हैंड एंड आई एम गोना गाइड यू इन योर जर्नी. ऑलराइट, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक. ऑलराइट वर्गो. Alright Virgo, the message for you is very clear. So you've got the Fool and the Opportunities, Possibilities card. मतलब there's a world out there of possibilities. You have to be very very observant and sharp and you have to make that effort. Okay, ताकि वो possibilities materialize हो.
Yes, those possibilities or those opportunities will be a bit risky and they will not be the most comfortable, and it may require extra effort and time from you and risk for you, but don't be a fool and make sure that you are sharp like an eagle and you grab those opportunities at the right time. All right, and third आपका आया harmony card, मतलब overall the coming week is going to be very harmonious for you. You'll be at peace with yourself and the people around you, and the blue in the card means कि बहुत tranquility और आराम से कोई भी disturbing news or events नहीं होने वाले वो. So I wish you a good peaceful week ahead. I'm gonna take out the cards for my Libra friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for the upcoming week. Hi Libra, so the cards that we've got for you this week is moment to moment. मतलब you have to live in the moment Libra. इन द पास्ट आप बहुत सारे पास्ट मोमेंट्स में रह रहे हैं या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी कर रहे हैं, तो द मैसेज इज क्लियर फॉर यू कि आपको प्रेजेंट पे रहना है, उसको एम्ब्रेस करना है और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है अबाउट व्हाट्स हैपन और व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज लिविंग इन द मोमेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. जो रेनबो है उसके आसपास, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाएंगे या आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे. यू कैन स्टिल डू ऑल ऑफ दैट विदाउट गेटिंग anxious about it. All right. Second आपका आया postponement card. Again कुछ चीज़ों को लेके कुछ decisions आप काफ़ी टाइम से postpone कर रहे हैं. So now you have to take a call and आपको वो decisions लेने हैं. जो भी pros and cons आपको weigh करने वो weigh करो and you go ahead. Otherwise क्या होगा कि आप repent करेंगे. वो एक beautiful picture की तरह आपके सामने एक wall पे रह जाएगी and you will keep thinking to yourself कि काश मैंने वो opportunity को ले लिया होता या काश मैंने वो decision उस time पे ले लिया होता. एंड थर्डली आपको वो रियलाइजेशन मोस्ट प्रॉब्ली आ भी जाएगी बिकॉज एक न्यू विजन कार्ड है. मतलब आप अपने पुराने कॉम्प्लेसेंट सेल्फ को छोड़ के, अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ के एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज फिगर अपीयर हो रही है इसमें, जिसमें आपको बहुत क्लियर है कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा गोल है. तो दैट्स गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पीस लिब्रा. ऑलराइट, आई एम गोना टेक आउट कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक. ऑलराइट स्कॉर्पियो. Alright Scorpio, so the first thing that's come for you is clinging to the past. मतलब आप कुछ पुराना पास्ट का बैगेज लेके बहुत चल रहे हो कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई एंड दीज थिंग्स वर नॉट वेरी प्लेजेंट. तो आप वो नेगेटिव सिचुएशंस को बार बार सोचते हो और कोई भी फ्यूचर डिसीजन लेने से पहले आप फिर वो पास्ट की चीज़ें सोचने लगते हो. सो प्लीज रिमेंबर दैट अनलेस यू लेट गो ऑफ दिस बैगेज ऑफ द पास्ट you will not be able to proceed ahead. तो उस बैगेज को छोड़ दीजिए. whatever is done and dusted, let it go away and get ready to embrace your future and your present most importantly. Second आपका कार्ड आया माइजर, मतलब आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं स्कॉर्पियो इन द कमिंग वीक्स एंड आप वो फॉर अ रेनी डे सेव करेंगे वो चीज़ें अब, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी फैमिली को वो ज़रूरत पड़ेगी, तो यू विल डिग इन टू दैट रिजर्व ऑफ योर्स और आप वो यूज़ करेंगे. ऐसा हो सकता है कि इस बिहेवियर की वजह से शायद से कुछ लोग आपको माइजर भी बोले, बट यू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिलीज लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट. थर्ड आपका कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन. तो इसमें ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि बाहर की मोह माया में मत जाइए. देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड दिस इल्यूजन विच द वर्ल्ड हैज क्रिएटेड. हैव फेथ इन मी, believe in me and I will guide you. I have the Midas touch, मतलब golden touch है, and I will create beautiful opportunities for you. So just make sure that you listen to me and you listen to your inner voice and not in the humdrums of the outside world. Alright, I'm gonna take out the cards for my Sagittarius friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for the upcoming week. Alright Sagittarius. Okay. So Sagittarius, the first thing that's come for you is the guidance card. It's a very beautiful card because it's an angel of the god and they are saying to you that we are here to guide you. Okay, even if you don't feel us, that we are around you, and even if in your moments of despair you feel that God has turned his face away from me, that's not true. I am here, and even in moments of darkness or despair, I'm gonna be here even if you don't realize that. So that's a very beautiful card that the guidance has come for you. Second आपका कार्ड आया है साइलेंस कार्ड. मतलब आप कुछ अपने करेंगे, you will consciously take some steps to make sure कि आप इनर वे में आप अपनी इनर पीस और साइलेंस को मेंटेन करें एंड दैट यू डोंट गेट डिस्टर्ब बाय द outside situations around you, because there are some situations that are making you angry, जिसकी वजह से आप you feel like fighting with those people or fighting with those circumstances and you're keeping it all bottled up inside. So the guidance for you is that you have to
talk to the people, you have to let it out in a constructive way, that energy, and make sure that you maintain your inner silence and tranquility. All right, Sagittarius, I'm going to take out the cards for my Capricorn friends and see ki what are the tarot messages for them for next week. All right, Capricorn. All right, Capricorn, so you got a very beautiful card called ripeness. मतलब all the effort that you have put in the past, it's going to bear fruit now. तो आपकी जो मेहनत थी, जो आपने की थी इतने टाइम से, वो अब कहेगी ना फल देगी आपको, और आप खुश हो गए बिकॉज इट्स द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड लेबर. तो आप उसको एंजॉय करोगे और वो पक पक के फ्रूट्स नीचे गिरे, विच यू विल एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू विल मेक द मोस्ट ऑफ इट. सेकेंडली आपका कार्ड आया है एग्जिस्टेंस कार्ड. मतलब आप नेक्स्ट वीक बहुत अब मोमेंट पे एग्जिस्ट करेंगे. यू विल नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड बिकॉज एक नेकेड फिगर है. मतलब यू आर नॉट वरिड अबाउट वर्ल्डली इल्यूजन्स या अपने खुद के फोबिया इनहिबिशंस को छोड़ के यू विल बी एट पीस एंड यू हैव गेन दैट विजडम दैट दिस इज द वे इट हैज टू बी, बिकॉज आप लोटस लीफ पे बैठे हो. और शूटिंग स्टार का मतलब है कि कुछ लकी फॉर्च्यून आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक, विल ब्रिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस. एंड थर्ड आपका कार्ड है कॉन्शियसनेस, विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज द डिवाइन इज सेइंग कि आई प्लीज बिलीव इन योर कॉन्शियसनेस, आपकी इनर वॉइस में, बिकॉज दैट इज वेयर आई रिसाइड एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन योर लाइफ पाथ. ऑलराइट, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल messages coming for you, Capricorn. I'm gonna take out the cards for my Aquarius friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for the upcoming week. All right, Capricorn. Okay, so Capricorn, the message is very clear for you. You have been going with the flow for a very long time. आप एक routine में बहुत ज़्यादा comfortable हो चुके हैं, and if you continue to just go with the flow, then how will you progress ahead? You have to swim against the currents and do something out of the box and something more adventurous with your life, because that's going to bring you a lot of happiness. All right, and the message is also very clear that that's something in your life you have to make sure that अपनी creativity को आप use करो. तो creativity card का मतलब है कुछ hobbies जो आपको बहुत pleasure देती हैं वो वापस रिवाइव कीजिए, या आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ी और क्रिएटिविटी अपनी यूज़ कीजिए बिकॉज यू हैव इट. एंड वंस यू डू दैट आपको बहुत सारी फ्लावरिंग, मतलब बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, पीस, एंड स्टार्स इन द हेयर मीन्स वेल्थ. ओके, एंड द मून मीन्स पीस. तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके यू कैन अर्न वेल्थ, यू कैन गेट पीस and you can get a lot of happiness. So make sure that you infuse creativity in the projects that you undertake. And third आपका आया है rebel card. मतलब you are going to rebel in a very positive way about certain things in your life where you will be very clear that जो भी मेरी पुरानी बंदिशें थी, I'm gonna break them. I have the knowledge, the torch, the light of wisdom to make clear decisions now, and I have the resilience of a eagle. मतलब आपके साथ जो भी पहले हुआ था ठीक ही हुआ था, बट आप एक रिबेल की तरह बोलेंगे अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई हैव द नॉलेज विद मी, आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल दीज बैरियर्स एंड आई एम गोइंग टू गो फुल स्टीम अहेड ऑन टुवर्ड्स माय गोल. दैट्स अ वेरी positive note for you. All right, so break that flow, be a rebel, and infuse creativity in your projects, Aquarius. I'm going to take out the cards for my Pisces friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. All right, so Pisces, the message very clearly coming for you is you have to let go of certain things which are not adding value in your life, whether it is feelings towards certain people or baggage or certain worldly things that you're holding on to. You have to let go, just like water, like dew, it's falling off from the leaf into this pond of a water body under it. So you have to let go, because जब आप let go करोगे इन चीज़ों को तो you will feel very peaceful and lighter. And you have to show maturity next week in certain decisions. Learn from whatever experiences you have had and उस नॉलेज को लेके मेच्योर डिसीजंस आपको बनाने. यू डोंट हैव टू जंप द गन, बिना सोचे समझे चीज़ों को हाँ बोलना, या तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी मेच्योरिटी को, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके राइट डिसीजंस लो लाइफ में. एंड ऑल्सो सर्टन अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम योर वे विच आर गोइंग टू टेक यू ऑन अ एडवेंचर. सो फॉर यू टू फुली एम्ब्रेस दोज अपॉर्चुनिटीज, एक चाइल्ड जैसे क्यूरियोसिटी रखता है और किसी फोबिया के बिना वो जाता है, तो सेम वे में आपको चाइल्ड लाइक इनोसेंस और कॉन्फिडेंस रख के अपने एडवेंचर्स पे जाना है, बिकॉज दिल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस. द रेनबो ऑफ हैप्पीनेस इज वेटिंग फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज हैव अ चाइल्ड लाइक
characteristics. All right, Pisces, I hope you have a very positive week. I've been having a lot of fun making these videos every week, and I hope you're enjoying them too. Until next time, stay healthy and stay positive. Take care. Bye.